Welcome everybody. This is our class 10th light series, chapter light series. And till now, we have covered, in our previous video, we have covered mirror formula and we have also done few numericals related to it to give you some idea that how to apply variables and how to decide positive negative values of different mirror related variables like object length, object distance, image distance, etc. And we have also covered all the cases for different mirrors like concave and convex, and we have uh, write down that what will be the values of uh, different variables in the positive or negative aspect. So today we will continue further. Today we will start refraction. Till now we have studied reflection, and now we will go to refraction. We will study its basics in today's video, and as usual I will urge you to share, subscribe and comment if you have any doubts, uh, because more you share, more you subscribe, more we feel motivated to make such type of content. And the more you share, more it reaches to people who need such type of content, such type of videos. So I will ask you to share it, subscribe it, and if you have any doubts then ask in that particular video which you are watching. So now we will start our today's topic, that is refraction. So till now, in your previous class and in starting classes of this chapter also, we have already explained to you that light is a wave, and when wave hits a boundary, then two things can happen. First is reflection, and second is refraction. Reflection happens most in the case of metals, also happens in non-metals, but most of the time reflection happen in metals and refraction happens in transparent materials like glass, water, oils, एक्सेट्रा. यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है. So till now we have studied reflection, why it happens, how it happens. Then we studied reflection from mirrors. From that we studied images. From that we studied real and virtual images. So from one topic we got that much further, just from single reflection topic. Similarly, we will cover in-depth analysis of refraction also. So before going in depth, first we have to study the basics of reflection. So to start with the basics, first we have to know that what is refraction. So what is refraction? So पहले हम आपको प्रैक्टिकल आइडिया देते हैं, then we will go to theoretical part. तो सपोज कीजिए आपके पास एक बीकर है, वाटर बीकर, जिसके आर पार जिसके आप अक्रॉस देख सकते हो.
ये सपोज एक बीकर है जिसके अंदर वाटर भरा हुआ है। अभी क्या करते हो, आप एक रोड लेते हो जो आप इसके अंदर डिप करते हो। सपोज ये आपके पास एक रोड है जो आपने वाटर के अंदर डिप करी। सो अगर नॉर्मल कंडीशन होती तो आपको ये रोड ऐसे दिखाई देती, अगर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता। तो ये केस है नो रिफ्रैक्शन का। बट इन रियलिटी रिफ्रैक्शन होता है और उसकी वजह से जो रोड है उसका जो आपको अपीयरेंस है वो थोड़ा बदल जाता है। हम आपको वो शो करते हैं। सो इन रियलिटी क्या होगा, अगर ये आपके पास बीकर है तो आपको रोड एज इट इज स्ट्रेट नहीं दिखाई देगी, जो रोड है वो थोड़ा बेंड हो जाएगी। ये रोड आपका पानी से बाहर वाली रोड है और जो पानी के अंदर वाली रोड है वो थोड़ा आपको ऐसे दिखाई देगी, जबकि उसकी रियल शेप कुछ ऐसे होनी थी। इन रियलिटी जो रोड की शेप थी, जो ये डॉटेड लाइन है वो शो कर रही है, बट आपको ये वाली शेप दिखाई देगी, ब्लैक वाली। इसको हम डिफरेंट कलर दे सकते हैं। हाँ, तो आपको जो हमने ये पिंक कलर वाली पार्ट शो किया है आपको ऐसा दिखाई देगा, जबकि आपको ऐसे ये ब्लैक कलर वाला ओरिएंटेशन रोड का दिखाई देना चाहिए। सो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन। सो दिस इज ए बेसिक एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन। एक और आपको एग्जांपल देते हैं जो कि आपने शायद जब आप लैब में जाते हैं तब आपने ऑब्जर्व किया हो, प्रिज्म के रिलेटेड। सपोज कीजिए आपके पास एक प्रिज्म है, ये प्रिज्म है और इस पे जब भी कोई लाइट स्ट्राइक करती है, सपोज ये लाइट आती है इसके ऊपर, तो आपको दूसरी साइड पे कुछ कलर्स दिखाई देते हैं। ये सपोज ग्रीन हो गया, ब्लू कलर, उसके बाद आपको येलो दिखता है, ऑरेंज दिखता है और रेड भी दिखता है। जो सबसे लास्ट कलर होता है वो रेड होता है और सबसे ऊपर वाला कलर नॉर्मली वोयलेट होता है। सो ऐसे आपको कलर्स दिखाई देते हैं। ये भी किसका एग्जांपल है, रिफ्रैक्शन का। इसको एक्चुअली डिस्पर्सन ऑफ लाइट भी बोला जाता है, बट ये किसकी वजह से हो रहा है, रिफ्रैक्शन की वजह से हो रहा है। और ये आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। और अगर आप सेम फिनोमिना किसके साथ करो, मीन्स हमारे पास जो ये प्रिज्म है ये ग्लास का बना होता है। जो आपके पास एक नॉर्मल ग्लास है और जो प्रिज्म का ग्लास है, दोनों में कोई फर्क नहीं होता। बट अगर सेम चीज आप स्क्वायर ग्लास से करो, मीन्स अगर आपके पास ऐसे ग्लास स्लैब है कोई और उसके ऊपर आप लाइट डालोगे, तो वहां पे आपको रिफ्रैक्शन नहीं दिखाई देगा, सॉरी, कलर की स्प्लिटिंग नहीं दिखाई देगी, रिफ्रैक्शन दिखाई देगा। अगर ये लाइट है यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट करती है, तो आपको यहाँ पे रिफ्रैक्शन तो दिखाई देगा, यहाँ से ऐसे लाइट निकलेगी, बट उसमें कलर्स नहीं होंगे। बट प्रिज्म के केस में कलर्स होते हैं।
जबकि दोनों सेम मटेरियल से बने हुए हैं, ये भी ग्लास है, ये भी ग्लास है। अगर आप इस ग्लास को स्प्लिट कर दो दो हिस्सों में, अगर आप इसको ऐसे दो हिस्सों में कट कर दो, तब आपको कलर्स दिखाई देना शुरू हो जाएंगे यहां से निकलने वाले। मीन्स अगर आपने इसको दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया एंड फिर दो हिस्सों को आपने ये ऐसे आपने इसको दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया, और फिर अगर आप यहाँ पे लाइट स्ट्राइक करवाते हो ऐसे, तो अब आपको कलर्स मिलेंगे जो आपको यहाँ पे पहले मिल रहे थे, जैसे ये ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज एंड रेड। और भी कलर्स होते हैं, 7 कलर्स बोले जाते हैं, जो कि विबग्योर के अंडर आते हैं। तो तब आपको कलर मिलते हैं। तब आपको ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि जब आप उसको एक ट्रायंगुलर शेप में कट कर देते हो तो आपको कलर मिल रहे हैं, जब आप स्क्वायर शेप में हो तो आपको कलर्स नहीं मिल रहे। तो ये चीज का भी हम एक्सप्लेनेशन आपको देंगे कि ऐसा क्यों होता है। सो ये रिफ्रैक्शन के लिए बेसिक एग्जांपल्स थे। अब हम रिफ्रैक्शन की थ्योरी को स्टडी करेंगे कि रिफ्रैक्शन की थ्योरी क्या है और इसको डिस्क्राइब कैसे करते हैं। सो व्हाट इज रिफ्रैक्शन? So refraction is when light enters in different medium or from one medium to another medium. Then it changes its path. This phenomena is known as रिफ्रैक्शन। अब आपको इसको एक्सप्लेन करते हैं डेफिनेशन को। लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो रिफ्रैक्शन होगा। अब आपको ये पता होना चाहिए, ये हम अपने 9th क्लास की वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर भी चुके हैं अगर आपने उनको देखा है तो, कि जब भी आपके पास दो मीडियम होंगे तो जहां पे मीडियम चेंज होता है वहां पे बाउंड्री बनती है। लेट मी शो यू। तो सपोज कीजिए हम वाटर का एग्जांपल ले रहे हैं, वाटर और ग्लास और एयर का एग्जांपल ले रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे आप मोस्टली वही स्टडी करोगे। सो ये ग्लास है हमारे पास और ये बाहर वाली एयर है। सो दिस इज एयर एंड दिस इज ग्लास। तो जहां पे एयर और ग्लास मिल रहे हैं, ये जो आपको तो स्काई कलर की लाइन दिखाई दे रही है, इसको हम डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज रेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको जो यहाँ पे रेड कलर का रीजन दिखाई दे रहा है, डोटेड लाइन है जो रेड कलर से, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बाउंड्री। जहां पे दो मीडियम एक दूसरे के साथ मिलते हैं उसको बाउंड्री बोला जाता है।
और वेव्स के रिलेटेड में हमने आपको बताया था कि लाइट एक वेव है, लाइट एक वेव है, और वेव जब बाउंड्री पे आती है, बाउंड्री पे जाके स्ट्राइक करती है, तो दो चीजें होती है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, या दोनों एक साथ भी हो सकते हैं, और जो कि इन रियलिटी दोनों एक साथ ही होते हैं। तो जब भी यहाँ पे कोई वेव स्ट्राइक करेगी तो उसका कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है एयर में वापस, और कुछ हिस्सा ट्रांसमिट हो जाता है ग्लास के अंदर। तो जो ट्रांसमिटेड पार्ट है वहां पे तो होता है रिफ्रैक्शन, और जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है वहां पे रिफ्लेक्शन होता है, जो बाउंस बैक कर गया। मीन्स अगर आपके पास कोई वेव है, ये आपके पास सपोज एक वेव है, तो जब ये मिरर यहाँ पे स्ट्राइक करती है तो यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा सबसे पहले। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जब आप लगाओगे तो उसके लिए आपको नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। तो ये हम नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। नाउ दिस इज आवर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो सेम एंगल कहां पे होगा, सेम एंगल होगा रिफ्लेक्टेड रे का। तो हम रिफ्लेक्टेड रे को रिप्रेजेंट करते हैं सेपरेट कलर से। तो ये हमारी हो जाएगी, सपोज दिस इज आवर रिफ्लेक्टेड रे, और इसका कुछ हिस्सा ग्लास के अंदर भी जाएगा। तो जब ये ग्लास के अंदर जा रही है तो इसको सेम पाथ फॉलो करना चाहिए था। मींस लाइट को यही पाथ फॉलो करना चाहिए था, बट लाइट ये पाथ फॉलो ना करते हुए एक सेपरेट पाथ लेती है, और वो पाथ कुछ ऐसा होता है। तो ये जो ब्लू लाइट है ये है रिफ्रैक्टेड लाइट। सो हम इसको थोड़ा सा चीजों को एडजस्ट कर देते हैं। यहां से हम एयर हटाते हैं, एयर को ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पे एयर है, दिस इज एयर। ये जो हमारी लाइट है ये है इंसिडेंट लाइट। ये जो लाइट है जो पिंक कलर में है, इट इज रिफ्लेक्टेड लाइट। और ये जो एंगल होगा ये होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो ब्लू लाइन है, जो ब्लू लाइट है, दिस इज रिफ्रैक्टेड लाइट। और जो यहाँ पे ये ब्लैक वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये है ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट। सो जो रिफ्लेक्टेड वाला पार्ट है ये हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हमें कौन सा पढ़ना है, रिफ्रैक्टेड वाला पाथ पढ़ना है। और रिफ्रैक्टेड वाला पाथ में जो हमने बोला था आपको कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो अपना रास्ता बदल देती है। मींस इसका ओरिजिनल पाथ ये ब्लैक वाला था, बट इसने अपना रास्ता थोड़ा बदल दिया और ये ब्लू वाला पाथ फॉलो किया। तो इसी फिनोमिना को रिफ्रैक्शन बोला जाता है। अब जैसे यहाँ पे हमने नॉर्मल के साथ एंगल्स बनाए थे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था, ऐसे ही यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी होता है।
ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है कि कितने एंगल पे रिफ्रैक्शन हुआ है, किसकी कंपेरेटिवली नॉर्मल के कंपेयर में कितने एंगल पे रिफ्रैक्शन हुआ है। अगर ये एंगल मीन्स ये लाइट एज इट इज ब्लैक पाथ वाला फॉलो करती, मीन्स यहाँ पे हर जगह एयर होती, ग्लास ना होता यहाँ पे तो ये बिल्कुल ब्लैक पाथ फॉलो करती एज इट इज, ना कोई रिफ्लेक्शन होता ना ही कोई रिफ्रैक्शन होता। बट जब भी मीडियम चेंज होगा तो दोनों चीजें होती हैं, रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है। रिफ्लेक्शन हमें पढ़ चुके हैं, कवर कर चुके हैं, तो हम इस पाथ को कंसीडर अभी नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ रिफ्रैक्शन वाला पाथ कंसीडर करेंगे। तो जो हमारी जब भी हम स्टडी कर रहे होंगे और हमारा बेसिक सेटअप कुछ ऐसे रहेगा। जब भी हम स्टडी करेंगे तो हमारा बेसिक सेटअप ऐसे रहेगा कि यहाँ पे रिफ्लेक्शन वाला पार्ट नहीं होगा, ये लाइट हम नहीं लेंगे, हम सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंट लेंगे और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन लेंगे, और अब इस एंगल को आर बोला जाएगा। रिफ्लेक्शन के केस में इसको आर बोलते थे, अभी जब हम सिर्फ ओनली रिफ्रैक्शन स्टडी कर रहे हैं तब हम इसको आर बोल देंगे। अगर हम दोनों स्टडी करेंगे तो हम इसको कुछ और सिंबल दे देंगे, जैसे एक्स वाई जेड और समथिंग कुछ भी हम इसको दे सकते हैं। सो दिस इज बेसिक डायग्राम फॉर रिफ्रैक्शन स्टडीज। जब भी हम रिफ्रैक्शन स्टडी करेंगे तो हम ये हमेशा इस डायग्राम को रेफर करेंगे, इसके हिसाब से हम अपनी स्टडीज करेंगे, अपनी चीजों को एनालाइज करेंगे। सो ये तो हो गया डायग्राम। अभी आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब लाइट एंटर करती है तो क्या चीजें चेंज होती हैं, क्या चीजें कांस्टेंट रहती हैं, बिकॉज उसके बेसिस पे ही आप स्टडी कर पाओगे। तो कोई भी वेव हो, वेव के पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ वेरिएबल्स होते हैं। ये हम 9th क्लास में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जस्ट आपको एक बेसिक आइडिया दे देंगे यहाँ पे कि अगर आपके पास कोई वेव है तो वेव से रिलेटेड क्या होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, कुछ चीजें होती हैं। सो पहली है वेवलेंथ, और वेवलेंथ क्या होती है, आपको जब भी कोई वेव रिप्रेजेंट करनी है तो आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, ऊपर वाले पार्ट को क्रस्ट बोला जाता है, नीचे वाले पार्ट को ट्रफ बोला जाता है। और जब एक क्रस्ट और एक ट्रफ आ जाए, वन क्रस्ट प्लस वन ट्रफ आ जाए, तो इसको वन साइकिल बोला जाता है। वन साइकिल, वन वाइब्रेशन या वन ओसिलेशन, ऐसे बोला जाता है। जैसे यहाँ पे अभी एक साइकिल है, तो अगर मैं यहाँ पे ये एक क्रस्ट ऐड कर दूं और एक ट्रफ और ऐड कर दूं तो ये हो जाती है दो साइकिल, दो वाइब्रेशन या दो ओसिलेशन। तो वेवलेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive क्रस्ट्स और ट्रफ्स। दो क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ है, दो ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ है, या और डिस्टेंस कवर्ड इन वन साइकिल बाय वेव। सो अगर मैं यहां पे एक वेव बनाता हूं, ये एक साइकिल हो गई, ये दो साइकिल हो गए। ये पहला क्रस्ट है, ये दूसरा क्रस्ट है, ये पहला ट्रफ है, ये दूसरा ट्रफ है। तो जो दो क्रस्ट हैं उनके बीच का डिस्टेंस या दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस या
एक साइकिल के बीच का डिस्टेंस, एक साइकिल का कंप्लीट डिस्टेंस, ये तीनों क्या है, वेवलेंथ है। और जो वेवलेंथ का सिंबल होता है उसको लैम्डा से डिनोट किया जाता है, वेवलेंथ को, इसके लिए सिंबल यूज किया जाता है लैम्डा। तो ये भी लैम्डा है, ये भी लैम्डा है, और ये भी लैम्डा है। और साथ में एक और चीज आपको क्लियर कर देते हैं कि एक क्रस्ट से लेके दूसरे ट्रफ तक का डिस्टेंस मींस अगर आप ये डिस्टेंस लेते हो, एक क्रस्ट से दूसरे ट्रफ तक का डिस्टेंस, या एक क्रस्ट से पहले पहले क्रस्ट से पहले ट्रफ का डिस्टेंस, या दूसरे क्रस्ट से दूसरे ट्रफ तक का डिस्टेंस, ये सभी क्या होते हैं, हाफ ऑफ लैम्डा, लैम्डा बाय 2 होते हैं। दिस इज लैम्डा बाय 2, दिस इज लैम्डा बाय 2। ये हो गया हमारा पहली जो टर्मिनोलॉजी है वेव से रिलेटेड, ये हमने उसको कवर कर लिया। सेकंड होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ oscillations, वाइब्रेशंस और साइकिल्स बाय वेव इन 1 सेकेंड, उसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। तो सपोज कीजिए, फिर से हम इसका एग्जांपल ड्रॉ करते हैं। ये कोई वेव है, इधर एम्पलीट्यूड है और इधर टाइम है। इस केस में जब हम वेवलेंथ की बात कर रहे थे तो यहाँ पे था एम्पलीट्यूड और यहाँ पे था डिस्टेंस। अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड है, ए मीन्स एम्पलीट्यूड, और टी यहाँ पर टाइम है, क्योंकि हमें 1 सेकंड की ड्यूरेशन लेना, तो हम इस एक्सिस पे टाइम लेंगे। आपकी बात, सपोज कीजिए ये वेव है हमारे पास और इसको टाइम लगता है यहाँ पे, ये टाइम है 0.5 सेकेंड। तो यहाँ पे कितनी वेव होती है कंप्लीट, ये पहली वेव पूरी हो गई, ये दूसरी वेव पूरी हो गई, ये तीसरी साइकिल पूरी हो गई, और ये चौथी साइकिल पूरी हो गई। मीन्स यहाँ पे 4 साइकिल, आप लिख सकते हो 4 साइकिल, 4 वाइब्रेशन या 4 ऑसिलेशन है। कितने टाइम में, 0.5 सेकेंड में। अगर आप इसको उल्टा करके लिखोगे, 0.5 सेकेंड में 4 साइकिल है, तो 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 4/0.5, और इसको मिलेगा 8 साइकिल। मीन्स 1 सेकेंड में यहाँ पे 8 साइकिल आएंगे अगर ये वेव 1 सेकेंड तक चलती। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 8 हर्ट्ज। जो फ्रीक्वेंसी है इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, और जो इसका सिंबल होता है डिनोट करने के लिए वो होता है न्यू, इसको NEU ऐसे बोला जाता है, न्यू। जो वेवलेंथ था उसका सिंबल था लैम्डा, और जो फ्रीक्वेंसी है उसका सिंबल है न्यू। वेवलेंथ की यूनिट होती है मीटर, क्योंकि ये डिस्टेंस में मेजर होती है तो इसकी यूनिट मीटर होती है। और जो फ्रीक्वेंसी है उसकी यूनिट होती है हर्ट्ज, और इसका भी आपको एक रिलेशन बताएंगे। जो फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है वो टाइम पीरियड से निकलती है। सो यहाँ पे 0.5 सेकंड में 4 वेव पूरी हो रही थी, तो 1 सेकंड में 8 वेव पूरी होंगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 8 हर्ट्ज। अब एक और टर्म पे आते हैं, जो थर्ड है टाइम पीरियड।
टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन बाय वेव टू कंप्लीट वन साइकिल और oscillation और वाइब्रेशन। अगर इसी एग्जांपल को ले हम, अगर इसी एग्जांपल को ले तो यहाँ पे 4 साइकिल कंप्लीट हो रही थी, तो 4 साइकिल के लिए हमें लगता है 0.5 सेकेंड। तो एक साइकिल के लिए कितना टाइम लगेगा? 0.5/4, और आप इसको लिख सकते हो 5/10 इंटू 4, और ये आ जाएगा आपका 1/8 सेकेंड। तो जो टाइम पीरियड है इसका सिंबल होता है कैपिटल टी, और जो यूनिट होती है दैट इज सेकेंड, क्योंकि टाइम पीरियड है। और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में एक रिलेशन होता है, दैट इज जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि इसका सिंबल है न्यू, इज इक्वल टू होती है 1/टाइम पीरियड और 1/t। तो यहां से आप लिख सकते हो फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम पीरियड। तो अगर आप इसकी फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो इस केस में फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1/टाइम पीरियड। कितना है? एक साइकिल का टाइम को टाइम पीरियड बोला जाता है, तो और एक साइकिल का टाइम है 1/8। तो इसको आप रिवर्स करते हो तो ऊपर घुमा के 8 आ जाता है, तो 8 हर्ट्ज। और यही वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट की थी। यहाँ पे हमारे पास एक सेकंड के अंदर 8 साइकिल आई थी, तो फ्रीक्वेंसी 8 हर्ट्ज हो गई थी। यहाँ पे 4 साइकिल का टाइम पीरियड 0.5 था, एक साइकिल का टाइम हो गया 1/8 सेकेंड, और इसी को क्या बोला जाता है? टाइम पीरियड और टी। और जब आपके पास टी आ जाए तो आप उसका रिवर्स कर दोगे तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, दैट इज 8 हर्ट्ज। और इसमें अभी लास्ट टर्म स्पीड। तो स्पीड क्या होती है? इट इज रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 सेकेंड टू टाइम, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इट इज रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम लाइट इन सम टाइम टू दैट टाइम। और लाइट के लिए फॉर लाइट इन वैक्यूम एंड एयर, या तो वैक्यूम की बात करो या एयर की बात करो, जो स्पीड होती है उसकी वैल्यू ली जाती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। वैक्यूम एयर के लिए, दोनों के लिए ये वैल्यू हम अज्यूम करते हैं। स्पीड के लिए सिंबल यूज किया जाता है, कभी कभी v यूज किया जाता है, कभी कभी c यूज किया जाता है। लाइट के लिए स्पेशली c ही यूज किया जाता है। आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि लाइट के लिए c सिंबल यूज किया जाता है। यूनिट होती है, जो स्पीड की यूनिट होती है, दैट इज मीटर पर सेकेंड। और एक रिलेशन होता है बिटवीन स्पीड, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी में। क्या होता है कि जो स्पीड होती है ये होती है लैम्डा टाइम फ्रीक्वेंसी। स्पीड इज
वेवलेंथ टाइम्स फ्रीक्वेंसी, या आप ऐसे लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी होती है 1 बाय टाइम पीरियड, तो स्पीड हो जाएगी वेवलेंथ बाय टाइम पीरियड, और इसको आप ऐसे लिख सकते हो लैम्डा बाय टी। अभी आपको ये सब हमने क्यों करवाया, ये सब आपको इसलिए बताया, फर्स्ट आपके जो वेव से रिलेटेड कंसेप्ट हैं वो रिवाइज हो जाएं, और एक हम जब आपको अभी बताने जा रहे हैं, आगे हम आगे इसमें वीडियो में ही कवर करेंगे, दैट कि कुछ वेरिएबल्स हैं जो चेंज होते हैं और कुछ वेरिएबल्स हैं जो चेंज नहीं होते। तो उसके रिगार्डिंग आपको पता होना चाहिए कि पहले वो वेरिएबल होता क्या है, कि वेव स्पीड होता क्या है, वेव की वेवलेंथ क्या होती है, वेव का टाइम पीरियड क्या होता है। सो अब हम वो चीजें कवर करेंगे। तो जब हम इस फिगर की बात कर रहे थे तो हम इसी फिगर को आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा था। रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा था, क्योंकि एक वेव इंसिडेंट हुई। अब अगर यहाँ पे जो इंसिडेंट वेव है, इंसिडेंट वेव के लिए सब कुछ होगा। ये जो इंसिडेंट लाइट है इसके लिए उसकी एक वेवलेंथ होगी, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी और उसकी एक स्पीड होगी। ये तीन चीजें इंसिडेंट लाइट के पास होंगी, और यही तीन चीजें रिफ्रैक्टेड लाइट के पास होंगी। ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है इसके पास कोई लैम्डा होगा जो शायद इससे अलग हो, कोई फ्रीक्वेंसी होगी जो शायद इससे अलग हो, और कोई स्पीड होगी जो शायद इससे अलग हो। तो हम आपको इन्हीं के बीच में रिलेशन बताने वाले। सो इन रिफ्रैक्शन, in refraction, when light changes medium, then speed of light reduces। जब भी लाइट मीडियम चेंज करती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। और किस रेशियो में कम होती है, कैसे कम होती है, कि जो स्पीड है हम यहाँ पे सी स्पीड के लिए यूज कर रहे हैं, गैस के अंदर, सॉरी हम यहाँ पे पहले वैक्यूम लेते हैं, जो वैक्यूम के अंदर लाइट की स्पीड है वो सबसे ज्यादा होती है, फिर उससे कम होती है गैस के अंदर या एयर के अंदर, आप बोल सकते हो एयर इज ए गैस और कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस, फिर आता है लिक्विड के अंदर यानी कि वाटर, और लास्ट आता है सॉलिड्स। तो जो लाइट है उसकी स्पीड सबसे ज्यादा वैक्यूम में होती है, उससे ज्यादा गैस में होती है, और उससे कम गैस में होती है, उससे भी कम लिक्विड में होती है, और उससे भी कम सॉलिड में होती है। जबकि अगर आप साउंड को स्टडी करो, अगर आप साउंड को स्टडी किया है आपने, जो आपने प्रीवियस क्लास में साउंड को स्टडी किया है, फॉर साउंड वेव्स ये उल्टा होता है। जो साउंड वेव है उसकी वेलोसिटी सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा होती है, उससे कम होती है लिक्विड के अंदर, उससे कम होती है गैस के अंदर, और उससे भी कम कहाँ पे होती है, वैक्यूम में, जो कि होती है जीरो। तो लाइट के लिए साउंड से उल्टा है, वैक्यूम में साउंड चल ही नहीं पाता, और साउंड लाइट है जो वैक्यूम में बहुत फास्ट ट्रैवल करती है। किस स्पीड से ट्रैवल करती है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब हम एयर में आते हैं, गैस में आते हैं, तो थोड़ा सा कम हो जाती है, बट हम
इसी वैल्यू से कैलकुलेशंस करते हैं, बिल्कुल जो चेंजेस आता है वो स्लाइट आता है, बहुत कम आता है। लिक्विड और सॉलिड में ये स्पीड और भी कम हो जाती है, और भी ज़्यादा कम हो जाती है। तो ये हमने स्पीड के लिए मैटर कंसीडर कर लिया। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो रिफ्रैक्टेड लाइट की स्पीड है, हमने इसको c डैश लिया था, ये स्पीड कम होगी किससे, जो ओरिजिनल स्पीड थी एयर के अंदर। और आप ऐसे लिख सकते हो, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास is less than speed of light in air। तो हमारा स्पीड वाला कवर हो गया। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी पे। तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या है, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती, सिर्फ अकेली फ्रीक्वेंसी ही है किसी वेव के लिए, या दूसरा टाइम पीरियड हो जाता है क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी से ही रिलेटेड है, तो वो कभी चेंज नहीं होते। सो व्हेन लाइट changes medium, then frequency and time period does not change। इसका मीनिंग क्या होगा कि जो आपकी एयर के अंदर फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल है ग्लास के अंदर। चाहे ये एयर से वाटर के अंदर चले जाए तो भी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, चाहे ये एयर से आयरन के अंदर, लोहे के अंदर चले जाए तो भी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। फ्रीक्वेंसी का मीडियम से कोई रिश्ता नाता नहीं है, फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट है और मीडियम बदलने पे फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। सो फ्रीक्वेंसी कवर हो गया। अब थर्ड आता है वेवलेंथ। नाउ वेवलेंथ, तो अब देखिए हमने एक रिलेशन स्टडी किया था। स्पीड क्या थी, लैम्डा टाइम फ्रीक्वेंसी। तो जो स्पीड है किसी भी वेव की वो क्या है, वेवलेंथ टाइम्स फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये इस रिलेशन को हम नोटेशन फॉर्म में लिखें तो c इज इक्वल टू लैम्डा टाइम न्यू। अब ये रिलेशन दोनों के लिए ट्रू है। कहाँ कहाँ, जब हम एयर में हैं तब इंसिडेंट लाइट के लिए ट्रू है, और जब हम ग्लास के अंदर हैं तो जो रिफ्रैक्टेड लाइट है उसके लिए भी ये रिलेशन ट्रू है। सो हम ऐसा लिख सकते हैं दैट स्पीड इन एयर इज इक्वल टू लैम्डा इन एयर फ्रीक्वेंसी इन एयर। सिमिलरली स्पीड इन ग्लास is equal to lambda in glass frequency in glass। अब आपको ये पता है that frequency in air is equal to frequency in glass, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तो अगर आप इसको बोलो इक्वेशन 1, इसको बोलो आप इक्वेशन 2 और दोनों को डिवाइड कर दो, हम क्या कर देते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइड इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा, C glass by C air is equal to lambda glass frequency glass by lambda air frequency air। अब ये दोनों तो इक्वल है, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी दोनों इक्वल है तो कट हो जाएंगे एक दूसरे को। तो यहाँ से बचता है हमारे पास C glass by C air
इज इक्वल टू लैम्डा ग्लास बाय लैम्डा एयर। और अभी हमें यह भी पता है कि जो लाइट है उसकी वेलोसिटी गैस में लिक्विड से ज़्यादा होती है और सॉलिड से भी ज़्यादा होती है। मींस गैस की वेलोसिटी यानी कि एयर की वेलोसिटी, जो ग्लास है वो तो सॉलिड है, उससे ज़्यादा होगी। हमें क्या पता है दैट जो एयर के अंदर लाइट की वेलोसिटी है वो ग्लास की वेलोसिटी से ज़्यादा है। तो मतलब क्या होगा, सपोज कीजिए एयर की वेलोसिटी है 5 और ग्लास की वेलोसिटी है 2। तो अगर आप ग्लास की वेलोसिटी को एयर की वेलोसिटी से डिवाइड करोगे, 2/5 करोगे, तो आपको मिलेगा 0.4, जो कि होता है लेस देन 1। मीन्स ये वाली टर्म क्या होगी, लेस देन 1 होगी पूरी की पूरी। तो अगर ये लेस देन 1 है तो ये भी क्या हो जाएगी, लेस देन 1, क्योंकि दोनों इक्वल है। अगर ये 0.4 है तो इसको भी 0.4 होना पड़ेगा हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से, और तो इसको भी लेस देन 1 होना पड़ेगा। मीनिंग लैम्डा ग्लास लैम्डा एयर इज लेस देन 1। ओके, तो यहां से आप बोल सकते हो इजिली दैट लैम्डा ग्लास इज लेस देन लैम्डा एयर। मतलब कि ग्लास के अंदर वेवलेंथ भी कम हो जाती है, किससे, एयर से। सो आप सिंपली लिख सकते हो कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम एयर टू ग्लास, तब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहती है, स्पीड एंड वेवलेंथ बोथ डिक्रीजेस, वो दोनों कम हो जाते हैं। सी भी डाउन चला जाता है, वेलोसिटी भी डाउन चली जाती है और वेवलेंथ भी डाउन चली जाती है। अब अगर इसका उल्टा कर दें आप, क्या कि रिवर्स कर दिया हमने, व्हेन लाइट गोज फ्रॉम ग्लास टू एयर, कि जब ग्लास से एयर जाए, और आप बोलोगे कैसे जाएगी, तो अगर हम वही डायग्राम देखें हमारा, ये डायग्राम, तो इस डायग्राम में ये जो लाइट है ये लाइट जब यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगी तो इसको फिर से बाउंड्री मिलेगी यहाँ पे, और अब ये ग्लास से बाहर आएगी। तो जब ये ग्लास से बाहर आएगी, ये कुछ ऐसे बाहर आएगी। ये हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देंगे आपको इसकी कि कहाँ पे क्या होता है। तो जब ये ऐसे बाहर आ रही है तो अब ये क्या हो गई, ग्लास टू एयर हो गई। तो ये हो जाती है वापस एयर। तो अब ये हो गई ग्लास टू एयर। तो इस केस में क्या होगा, फिर से वही हमने बताया था कि फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होती, तो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, और जो स्पीड और वेवलेंथ पहले कम हो गए थे अब वो वापस से बढ़ जाएंगे। स्पीड एंड वेवलेंथ इंक्रीजेस, और आप बोल सकते हो कि सी भी अपवर्ड जाएगा, बढ़ जाएगा, और लैम्डा भी इंक्रीज हो जाएगा।
सो दिस इज बेसिक्स ऑफ रिफ्रैक्शन, कि रिफ्रैक्शन हुआ कैसे। हमने उसका आपको एक बार डायग्राम बताया, अभी डायग्राम की हम एक्सप्लेनेशन भी आगे देने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और हमने आपको कुछ बेसिक टर्म्स बताई उससे रिलेटेड, और वो कैसे चेंज होती है, स्पीड कैसे कम हो जाती है, वेवलेंथ कैसे कम हो जाती है और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, ये चीजें हमने आपको एक्सप्लेन की। ओके, तो अब हम आपको जो ये वाला डायग्राम है इसकी वर्किंग समझाते हैं, इसमें होता क्या है। और हम सिर्फ रिफ्रैक्शन लेंगे, रिफ्लेक्शन वाला केस जो हमने ये वाला केस था इसको हम इग्नोर करें। सो सबसे पहले हमें लेनी होगी एक ग्लास स्लैब, कि हमारे पास कोई ग्लास स्लैब है। ये ग्लास स्लैब हो गई। अब इसके ऊपर कोई लाइट आके स्ट्राइक करती है, तो हमने इंसिडेंट लाइट ले ली और उसको हमने रेड कलर से रिप्रेजेंट कर दिया। ये हमारी इंसिडेंट लाइट है, और अगर यहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता तो ये ऐसे जाती सीधा, इसको ऐसे सीधा जाना था। ओके, ये इसका नॉर्मल पाथ है। बट क्या होता है, जब ये यहाँ पे आके टकराती है तो रिफ्रैक्शन होता है, और उसके लिए आपको यहाँ पे क्या ड्रा करना पड़ेगा, नॉर्मल। तो हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है बाउंड्री के, और ये हमारी बाउंड्री है जहाँ पे दो मीडियम मीट करते हैं। दो मीडियम कौन से, पहला है एयर, दिस इज एयर, और ये है ग्लास। अब ये थी इंसिडेंट रे, और ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्या होती है, लाइट थोड़ा सा बेंड हो जाती है, किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। जो ये नॉर्मल है लाइट इसकी तरफ बेंड होती है रिफ्रैक्शन में। सो लाइट कुछ ऐसा पाथ फॉलो करती है। लाइट ये पाथ फॉलो करती है। लेट मी ड्रा इट वंस अगेन, क्योंकि हमें इसको आगे फर्दर भी करना होगा। हम इसको थोड़ा आगे लेके जा रहे हैं, बिकॉज बाद में आपको ये जो हमने आगे बढ़ा के बताया है इसका मीनिंग भी बताएंगे। तो लाइट ये पाथ फॉलो करती है, और ये हो जाती है रिफ्लेक्टेड लाइट। दिस इज रिफ्रैक्टेड रिफ्रैक्टेड लाइट, और ये हो जाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहां तक हमने कवर कर लिया। यहाँ पे हमारे पास एक बाउंड्री आई थी, तो हमने उसको उसके ऊपर रिफ्रैक्शन को सॉल्व कर लिया। अब क्या होता है, जो ये रिफ्रैक्टेड लाइट है, जब ये यहाँ पे जाके टकराती है, यहाँ पे फिर से क्या है, ग्लास और एयर बाउंड्री है। तो जब भी बाउंड्री आएगी फिर से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि अलग अलग मीडियम है। मीडियम का जब अलग अलग मीडियम हो तो बाउंड्री बनती है। तो अब ये फिर से लाइट ये रिफ्रैक्ट होगी। पहले लाइट एयर से ग्लास की तरफ आई थी, तो जो एयर होती है इसको बोला जाता है रेयर मीडियम, और जो ग्लास है वो है डेंस मीडियम। मतलब आप ऐसे आइडिया लगा सकते हो कि जिसके पार्टिकल पास पास है, एयर के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, ग्लास के पार्टिकल पास पास होते हैं। तो जिसके पार्टिकल दूर दूर होते हैं वो होता है डेंस रेयर मीडियम, और जिसके पार्टिकल पास पास होते हैं उसको बोला जाता है
डेंस मीडियम। तो जब एयर जो लाइट है जो रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में आती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। ये नॉर्मल है, जो ब्लैक लाइन है यहाँ पे ये नॉर्मल है, वो अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़ के नॉर्मल की तरफ चली जाती है। ओके, मीन्स अपने ओरिजिनल पाथ से नीचे की तरफ आ जाती है। आप ऐसे लगा लीजिए कि ये कोई एक क्लास है और क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे बैठे हैं और आपको इस कॉर्नर से लेके उस कॉर्नर पे पहुंचना है। तो जब ज्यादा बच्चे बैठे होंगे तो आप क्या करोगे, आप एक छोटे से छोटा पाथ फॉलो करोगे सो दैट आप इजीली वहां पे पहुंच सको, क्योंकि बच्चे ज्यादा बैठे हुए हैं तो वैसे भी पाथ जगह नहीं है, तो आप छोटे से छोटा पार्ट स्मॉल टू स्मॉल पार्ट ढूंढ रहे हो कवर करने के लिए डिस्टेंस को। अब क्या होता है, जब वापस आप डेंस से उसमें एयर में जाते हैं, मीन्स डेंस मीडियम टू वापस रेयर मीडियम में जाओगे तो अब यहाँ पे भीड़ नहीं है। यहाँ पे तो भीड़ थी इसलिए आपने छोटा पाथ ले लिया, यहाँ पे कोई भीड़ नहीं है तो आप फिर से क्या करोगे, लंबा पाथ लोगे, मीन्स आप नॉर्मल से दूर भागोगे। जब आप रेयर टू डेंस आए तो आप नॉर्मल की तरफ आए, जब आप डेंस टू रेयर जाओगे तो आप नॉर्मल से दूर जाओगे। सो यहाँ पे हम फिर से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट पे नॉर्मल ऐसे होगा कुछ, और लाइट का ओरिजिनल पाथ ऐसे होना चाहिए, जो हमने ये ब्लू कलर बाहर, ब्लू कलर की लाइन है जो बाहर आया है, लाइट का ओरिजिनल पाथ ऐसे होना चाहिए था। बट अब लाइट क्या करेगी, हम लाइट उसको वापस रेड से शो करते हैं कि लाइट अब इस पाथ से दूर हो जाएगी और लाइट कुछ ऐसे जाएगी, मीन्स वो अब नॉर्मल से दूर चली गई। और यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होती है कि जो ये लाइट है जो इंसिडेंट थी, और ये आउटगोइंग लाइट बोला जाता है इसको, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा कि ये लगभग एक दूसरे के पैरेलल है। सो ऐसे आप एक डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हो रिफ्रैक्शन के। आपको ये वाला हिस्सा डायग्राम का अपलोड करने की जरूरत नहीं है, अगर आप ऊपर वाला सिर्फ इतना पार्ट कवर करते हो तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। सो इस वीडियो में हम अभी इतना ही कवर करेंगे। इसके बाद हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करेंगे और रिफ्रैक्शन के यूजेस के बारे में बात करेंगे। वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड आई विल अर्ज यू, आई विल रिक्वेस्ट यू दैट अगर इन वीडियो से आपको एक बेटर इंफॉर्मेशन मिल रही है, बेटर नॉलेज मिल रही है, आपके कंसेप्ट्स बेटर हो रहे हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग में हेल्प मिल रही है चीज़ों को, सो please consider like, share and subscribe, because more you share, more you subscribe to our channel, it works as a feedback mechanism that yes, there are people who need such type of elaborate content and they are sharing it. So we feel motivated, yes, that we should work more on such type of videos, we should give more efforts, we should put more efforts on making such type of videos. So more you share, more you like, more you subscribe, more you comment, more we feel motivated to make such type of content. So I will urge you to please share this video with your friends, with your classmates, and also ask them to subscribe to our channel. Till then, keep watching, keep studying. We will meet in next video with more concepts. Thanks for watching.